नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत दा भला। यशवंती निराधार, धाम पहला गुरु प्राण पंथ पूरा, गुर बिन जन सदा अधूरा। गुरु प्रभ जान्यो एक, गुर बिन नाहि कोई टेक। गुरु प्रभ परे भंडार, गुर बिन नाहि उतरे पार। गुरु प्रभ एको आस, गुर बिन नाहि कोई सच रास यकीन। गुरु पैसा संग जी नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत दा धन कंदर्श। यह जो मजमून आपां सरवण कीता है, गुरु महाराज दर्शन दास जी की मुबारक रचना है। इस रचना के अंदर महाराज सानू बड़े प्यार नाल समझा रहे हैं कि संसार दे जीवो, असी उस परम पिता परमात्मा तो बहुत लंबे समय ते विछड़ चुके हैं। उस परमात्मा तो विछड़ करके दर बदर ठोकरां खांदे पे हैं। कदे किसी जामे दे विच आंदे हाँ, कदे किसी जामे दे विच आकर के असी संसार जगत विच विचरते रहते हैं। कदे काफूस बने, कीड़े मकोड़े बने, परिंदे बने, जानवर बने, या किंगर बने, मनुख बने। इत्थों तक असां अगे भी कई बार बेनती की है, आ जिहड़े पहाड़ां दे पत्थर ने जो टुट भज के आप दे साडे मकान बना दिंदे ने, ये भी एक त्रिग जून है जो समय नाल आंदी है और ये भी चली जाती है। और ये जिहड़ा विछोड़ा है लगभग 10 अरब साल का सानू पै जाता है परमात्मा तो विछड़न तो बाद और मुड़ के मिलन तक। वो भी तद मिलिया जा सकता है, असी परमात्मा नू तद मिल सकते हाँ जे असी कोई ना कोई साधन हटियो युक्ति परमात्मा नू मिलने वास्ते इस संसार दे विच करिए। युगा अवतार जो समय सिर आंदे हैं, जो मनुख जामे की अहमियत है, या यूँ कह लो जिस करके सानू सिरमौर गिनिया जाता है, बड़ा उच्चा तो सुच्चा गिनिया जाता है, वो कारण केवल एको ही है। बाकी तो जानवरां, कीड़ियां, मकौड़ियां, परिंदियां दे विचकार ते साडे विचकार कोई खास फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क है तो केवल इतना कि असी इस जामे च आकर के उस परमात्मा नू पा सकते हाँ, उस परमात्मा नू मिल सकते हाँ, या परमात्मा वर्गे हो सकते हाँ, या परमात्मा च जाकर के वसल कर सकते हैं। इत्थों तक भी साडे महापुरुषों ने सानू समझाया है कि जिन्हां देवी देवतियां दी असी पूजा करते हाँ, इबादत करते हाँ अपने घरां दे अंदर, जिन्हां नू पूजते हाँ, जिन्हां नू रज़ोइयां प्रार्थना कर करके वस्तां मंगते हाँ, चीज़ां मंगते हाँ जिन्हां दे पासों, आप हैरान होगे सुन के कि वो भी इस मनुख जामे लई तरसदे ने।
ਉਹ ਵੀ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਗੁਰਬੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਵਿਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਾਨਵਰ ਚਿਰਕਾਲ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਕੀੜੇ ਹੋਣ, ਮਕੌੜੇ ਹੋਣ, ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕ ਤੋਂ ਨਾਸਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵਿਰਲਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਖਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚੇਤਾ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚੇਤਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਡੋਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਢਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹਦੀ ਲਾਟ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਮਲੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਖਿੜਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਢਲਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਾ ਕਿ ਅਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੰਤ ਮਿਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀਏ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਏਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਗੋਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਪੌ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਊਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਸਮੁਸਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਹੈ, ਪੌ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੀ, ਉਮਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਊਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਊਸ਼ਾ ਤੱਕ। 2 ਊਸ਼ਾ ਕਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਊਸ਼ਾ ਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਜਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। 1-2 ਕਿਰਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਮਰ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਉਤਨੀ ਉਮਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਆਯੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਪਛਮ, ਕਿਰਨਾਂ ਸਿਮਟ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਗੋਲਾ ਸੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਗੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਤਾ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਧੇਰ ਛਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, तो समझो रात दी उम्र शुरू है। ज्यों ज्यों रात बीतती है उम्र गुजार लेंदी। तो महाराज जी कहते ने भले लोगो, इस संसार जगत की जिहड़ी खेड है, ये परमात्मा की अपनी बनतर है। वो बेहतर कलाकार है साडे नालों, आर्कीटैक्ट है, इंजीनियर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत बड़ा फिलासफर है, बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा लिखारी है, बहुत बड़ा साइंसदान है। आप किसी भी गुण के पक्षों उसनूं देख लो, असीं उहदे सामने बहुत बौने हाँ। तो महाराज फरमाते ने कि उसने संसार जग रचना जो रची, सारिਆਂ ਦਾ मिलना वरतना एक दूजे दे नाल संबंध रखे। मनुख ने भी संबंध रखा कईयां दे नाल। मनुख बेशक 84 लाख जामे तो अलग होया, उसनों पता लगा कि गां, मझ, बकरी, भेड़, ऊंट ये दुध देवन दे काम आ सकते हैं। इन्हां दा दुध पी करके मैं जिंदा रह सकता हाँ। इहदे ते चमड़े तो भी कम लिया, इसनूं आवाजाई दा ढोण दा साधन भी बनाया। होर जिहड़े जानवर ने तुसीं मदारी ला लो, जे बंदर का तमाशा विखा करके उसकी जीविका कमाई जा सकती है तो उसने अपने नाल लिया, उसने रिछ नूं अपने नाल लिया। यानी जानवर मनुख नूं रोजी कमा करके दे रहा है, वो उसनूं सिखा रहा, वो सिख करके उसनूं रोजी दे रहा। बैल लै लो, भैंसे लै लो, साडियां गड्डियां दे अगे जुतदे ने और कितना भार ढोआ ढुआई करते हैं। बहुतां ना आपां अगे जाइए, जिहड़े भी जानवर, परिंदे, कीड़े मकौड़े साडे दवाइयां च काम आ सके, जिंदगी दे विच काम आ सके, रहन बहन दे विच काम आ सके, असां उन्हां दे नाल अपना गठजोड़ कीता। वो साडे पूरक बने, असीं उन्हां दे पूरक बने। रहिंदे बेशक साडे नाल ही ने, पर मनुख परमात्मा पा जांदा है, परमात्मा वर्गा हो सकता है, परमात्मा जिहा हो सकता है उहदे गुण धारण करके। तो ये जानवर, कीड़े मकौड़े भावें साडे नाल रहिंदे ने, उस अवस्था नूं नहीं जा सकते। तो महाराज जी हुण सानू समझा रहे सी, बंदा कदे कदे सोचता है मैं कर्जा नहीं किसी का देना, लेना किसी तो नहीं, मंदा नहीं मैनू किसी ने आख्या, ना मैं मंदा चंगा किसी ने आख्या। घर च सुख सहूलत भी सब कुछ है, बीवी है, बच्चे है, घर बार का समान है, वेले कवेले 4 पैसे भी नहीं। उसदे बाद भी कदे कदे बह करके सोचता है कि मन के अंदर किते उदासी है, मन के अंदर किते इकल्लापन है, किसी चीज़ का विछोड़ा कचोड़ता रहता है। फिर सोचता है कदे किसी रिश्तेदार नूं मिला, किसी ने मिल गया जाके, अच्छा इदा नहीं पिक्चर देख आवा, शराब पी लवा, खेड़ तमाशा देख आवा,
कुछ समय वास्ते तो दिल बहल जाता है, घर आए वो जी टीस सी फिर होनी शुरू हो जाती है। ना उसनों शराब कबाब हटा सकी, ना मेले मसादे हटा सके, ना जीभां दे स्वाद हटा सके, ना कन्ना अखां दे स्वाद हटा सके। जद तक असी उस दायरे विच सी, जिद्दां किसी नूं पेट दर्द होवे, सिर दर्द होवे, गोली खा ली। जद तक टेबलेट दा गोली दा असर है, पेन किलर दा, दर्द हटी रहिंदी है। पेन किलर दा टाइम पूरा हो गया, दंद दा दर्द फिर चालू, किसी जख्म च दर्द फिर शुरू। इसे तरह यह जिहड़ा मूँह दे स्वाद ने, कन्नां दे स्वाद ने, अखां दे स्वाद ने, चस्के जिन्हों कहने आपां, ये भी पेन किलर साडे जीवन च ने। उस पीड़ा नूं हटाउण वास्ते कुछ समय लिए साडे तो दूर हो जाती है और फिर उत्थे दी उत्थे, चाहे कुछ भी कर लिए। गुरु नानक साहब ने भी फरमाया ना अपने जीवन काल कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दी खुमारी, खुमारी तो रोटी च भी होंदी है। अब देखो भुखिया कई बार नींद नहीं आती, बंदा रोटी खा लेंदा, चाहे सवेर दोपहर शाम, एक भरा सुस्ती जरूर आती है। फरीद साहब कहते हैं उहदे बारे, फरीदा मौतों भुख बुरी, राती खा के सुते, सवेरे फिर चढ़ी। मौत तो एको बारी आनी है, तो यह जी भुख की तकलीफ है, ये दिहाड़ी 2-3 बारी तंग करती है। यही भी खुमारी है, औलाद की खुमारी होंगी। औलाद नलैक निकल आई, ਜਾਂ रब ने बुला ली तो खुमारी उतर गई। जीवन साथी नहीं मिलया, नशा नहीं होया, जीवन साथी मिल गया, जीवन साथी का नशा चढ़ गया, जीवन साथी ना तलाक हो गया या जीवन चों विसर गया, तो फिर गल उत्थे दी उत्थे। पढ़ करके बंदा बाहर आया, कोर्स कीते, नौकरी नहीं मिली, रंग नहीं चढ़िया। नौकरी मिल गई, पदवी अच्छी हो गई, खुमार चढ़ गया कारोबार का। बाई चांस ऐसा समा आया, नौकरी छुट गई, कंपनी ने कट दिता, या कोई ऐसा कारण बनया कि जाना पै गया, खुमार भी उतर गया, नशा भी उतर गया। तो महाराज जी कहते ने कि हाथ पल्ला मार करके ड्रग्स खादा, शराब पीती, गुट हो के पहरे 5-7 घंटे। शराब का नशा भी खत्म होना एक दिन, ड्रग्स का भी खत्म होना। जे एंथीसीसिया का नशा एक टाइम ते खत्म होंदा है, तो आदमी फिर होश च आ जाता है। जब साडा ऑपरेशन होंदा है, एंथीसीसिया लगता है, सानू कोई होश नहीं रहिंदी, मुर्दे वांग पे हमने। डॉक्टर कैंची छुरे चला के कट वट दिंदा है, एक टाइम आंदा है, एंथीसीसिया खत्म, हल्की हल्की पेन होंदी है, फिर पेन किलर गोलियां न कुछ दिन दबा के आपां ठीक हो जाते। तो महाराज कहते कि ये नशा नाम का एक ऐसा है, नाम की खुमारी एक ऐसी है, जिन्होंने चढ़ गई, चढ़ेगी तो उन्होंने ना जिन्होंने पीती, जिन्होंने नाम जपया। जिस बंदे ने गोली 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 करता रहा, उन्हें नशा थोड़ी हो जाना। रोटी 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 करता रहा, पेट थोड़ी भर जाना।
पानी 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 करता रहे, प्यास थोड़ी बुझ जानी है। मिठा मिठा करता रहे, जुबान ते मिठास थोड़ी आ जानी है। मैं इसे तरह ही भरावा जद नाम खादा ही नहीं, जपिया ही नहीं, सिमरिया ही नहीं, याद ही नहीं किया, तो नाम की खुमारी कितों आवेगी, कितना रिलाइज होगी। गुरु नानक साहब फरमाते ने अपने सलोक जपजी साहब तो बाद कि जिन्नी नाम तिहाया, सबने नहीं, जिन्ना जिन्ना ने, वो बंदे या वो पुरख या वो बीबियां या बंदे, जिन्नी नाम तिहाया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिन्होंने नाम तिया उन्होंने मुख उजल होंगे। सो महाराज यही कह रहे सीगे कि महापुरुष या रब साकार बन के ये धरती ते आंदा, आया होया भी है और आंदा भी रहेगा। अपना काम करता है वो चला जाता है, बदल कितना बदल के भेष फकीरों का गालिब तमाशा ले कर्म देखता है। वो बदल के कदे नानक बनाया, राम बनाया, कदे कृष्ण बनाया, कदे कुछ बनाया, तो कहने का भाव है आंदा है सानू ये सुनिया देन वो दुनिया के लोगों, रब तुहानू याद करदा, तुहाडा पिता है वो। अगर तुसी अपने आप को इस्त्री कहते हो कामन, तुहाडा दा कंत है, ये आलो दा नाम, आलो दा एड्रैस, उहदे घर जाना। कहते ना कि वो आप पता लै लेने, उहदे मुताबिक चल के, तो जब उन्हें वसल हो जाता है, तो जिदा गवाचे हुए बच्चे नूं माँ मिल जाती है, फिर वह रोना पक्का ही बंद हो जाता है। तो जे माँ नहीं मिली, मिठाई देती, खिलौने देते, चुप तो हो जाता है थोड़े टाइम ली, टॉफी खा के माँ की याद आ गई, फिर रोन लग गया। खिलौना चला के यानी मन उक गया, माँ की याद आ गई, फिर रोन लग गया। तो मुड़ के जो माँ नज़र आ जाती है, खिलौना दिओ ना दिओ, चॉकलेट दिओ ना दिओ, माँ के गल लग गई, वो तकलीफ हट जाती है। इस तरह ही जिहड़ा साडा आत्मा का मालिक है, तुहाडा साडा सब दा, जिदन सानू मिल जाएगा, समझ लो उदन साडे जीवन का जिहड़ा दुख परेशानियां तकलीफ़ां एवें खाम खा दियां परेशानियां ये ऑटोमैटिक अपने आप ही हट जांदियां ने। सो ज़्यादा ना कहते हुए इत्थे आप तो क्षमा चाहते हाँ। सो बड़े प्रेम नाल कहो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्बत